Hello everyone, good morning. Welcome back in the topic comparing quantities and where we are working on a compound interest and a simple interest. As we have discussed some questions yesterday based on simple interest and compound interest, I know that the complete clarity is still not there with the questions. Considering that when we complete the next question, you will or you might get more clarity. At the same time, you will understand all these questions too. I tried my level best to give you a proper explanation yesterday about all those concept, and of course with the practicing those same questions, you will also might understood. That's what I thought. But now let us see how much you could get, and what can we do for all these questions from the text from the second question. So let us see. Let's begin the final exercise and the question based on it. Kamala borrowed rupees 26400. The principal is 26,400 from the bank and buy bought a scooter at the rate of 15%. The rate is given 15% per annum कंपाउंडेड ईयरली. सो हाफ ईयरली होता तो हम लोग रेट को हाफ करते, लेकिन कंपाउंडेड ईयरली है तो कुछ नहीं करना है रेट को वगैरह. वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 month to clear the loan? So time is given, which is 2 years 4 month. Basically I need to convert this months into the year. You know that it is supposed to be converted into year. तो ये हमने किया था ऑलरेडी. 2 + 4/12 होगा ये. You remember that 12 month forms 1 year. Okay, you remember that. I think you must know that. So it is going to be equal to 2 + 4 1 4 3 12. सेम एग्जाम्पल हमने लिया था as I remember. Okay, तो मंथ का जो कैलकुलेशन है दैट शुड बी डन by converting those month into year, and you get 2 year as a separate way and 1/3 with a separate way. Okay, the fractional year I have to cancel from the given content and then I have to solve it. तो हम लोग देखते हैं. So for first 2 years we are going to find out the compound interest with the amount is equals to principal into 1 plus r by 100. Of course the calculation I won't be wasting time. Please make sure that you all calculate properly. So we have amount will be equal to 26,400 into 1 plus 15 by 100. Yes, it is divisible by 5. 5 3 is a 15 and 5 20 is a 100. So 23 raised to n it's is supposed to be. Acha, okay, I'm sorry. So 26400 23 upon 20 raised to 2. Fine. So we have 26400 the square of 23. What is square of 23 is I think 529. 529 divided by 20 square is 400. 0 0 of course get cancelled, and ये divisible by 4 है तो 4 1 जा 4 8 जा 24, 4 6 जा 24, sorry, 4 6 जा 24 and 4 6 जा 24. तो your answer is 66 into 529. तो 66 into 529 is a very simple number. 34914. So this is the amount. You can easily multiply. That's not the problem. I'm just showing you this answer. तो ये तो clear हो गया. Please make sure you don't write directly. You calculate it, because if you not do it right now in examination, you will never able to do it. Remember that. So this is the amount that what you're going to get after 2 years. नाउ वी हैव टू स्टिल वर्क फॉर दिस फ्रैक्शन. तो जो फ्रैक्शन होता है उसके लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करते हैं. तो कितना है फ्रैक्शन? 1/3. तो सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल PTR अपॉन 100. तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग वो यूज़ करने वाले हैं. प्रिंसिपल कितना है, जो हमें अमाउंट आया उसको प्रिंसिपल लेना है. तो 34914 इंटू टाइम इज 1/3 इंटू रेट इज 15 डिवाइडेड बाई 100. 3 1 जा 3 5 जा 15, which was easy calculation. So what I have, the multiplying by 34914 into 5, we get something like 1745
174570 डिवाइडेड बाय 100, तो विच इज़ 1745.70 इज नथिंग बट इंटरेस्ट, बट रिमेंबर दैट इट इज़ इंटरेस्ट। ये अमाउंट नहीं है, तो इसको अमाउंट में ऐड करके दैट विल बी द टोटल अमाउंट। देयरफॉर द टोटल अमाउंट will be equal to 34914 प्लस 1745.70। तो इसको कैसे करते हैं सॉल्यूशन, इसको ऐड कैसे करते हैं, दैट आल्सो आई शो यू। 34 क्या है वो 914 प्लस 1745.70, यहाँ पे 0.00 ये होगा इसका एडिशन। अभी आपको तो इसके बाद आ जाएगा, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब फ्रैक्शन को क्या करना है ये समझ में आना चाहिए। यू कैन नॉट यूज़ द फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शन, याद रखो। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फ्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। किसके लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ इंटीग्रल टाइम के लिए करते हैं, इंटीजर के लिए करते हैं, ठीक है, नॉट फॉर द फ्रैक्शन। तो कीप दैट इन माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। फैबिना क्या है पता नहीं नाम। बोरोज रुपीज़ दिस वन, तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 12500। रेट इज गिवन विच इज़ 12% पर एनम ऑफकोर्स फॉर 3 years। टाइम इज गिवन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10%। ओके, दिस इज टू बी सिंपल इंटरेस्ट। एंड राधा ने क्या किया है, वही प्रिंसिपल है 12500। रेट इज़ 10% पर एनम। टाइम वही है, मुझे लगता है 3 years के लिए, सेम पीरियड, बस रेट चेंज है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। तो ये है सिंपल, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो आपको दोनों का इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। SI विल बी इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू PTR अपॉन 100, राइट। P इज 12500, टाइम इज 3, R इज 12%, right, upon 100, 0 get cancelled. So it is all 125 into 3 into 12, 125 into 3 into 12. तो योर इंटरेस्ट इज 4500। यह हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, याद रखो, हमें फॉर्मूला अमाउंट का है। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100। R कितना है 10/100 रेस टू 3 years, है ना। तो प्रिंसिपल है कितना 12500, 0 गेट कैंसिल, 11/10 रेस टू 3। तो 12500, 11 का क्यूब है 1331 अपॉन ऑफकोर्स 3 zeros, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 को मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बिकम ईजी फॉर मी टू लेटर ऑन मल्टीप्लाई। चलो 125 इंटू 1331, इसको आप लोग इजीली कर सकते हो 166375 एंड द आंसर इज 16637.5 इज द अमाउंट। ओके, मल्टीप्लाई अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है तो 1331 इंटू 125, तो 5 से करो एक आएगा, फिर 0 पकड़ के 2 से करो, दूसरा मल्टीप्लाई आएगा, फिर 0 पकड़ के 1 से करो। दिस इज हाउ वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अमाउंट आ गया, लेकिन हमें अमाउंट नहीं चाहिए। फिर एज यू ऑल नो कि हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, सॉरी इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 16637.5 माइनस जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है 12500, ठीक है। तो ये क्या आएगा 16637.5 माइनस 12500, तो ये आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 4137.5, ठीक है। एंड ये आ रहा है 4500। तो कितना ज़्यादा है, हु पेज मोर इंटरेस्ट? आई थिंक फेबिना इज पेइंग मोर इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए था ना। हाँ, बट रेट कम है ना। रेट सिंपल इंटरेस्ट का 12% है एंड इसका 10% है। पता नहीं आंसर करेक्ट है नहीं, यू कैन जस्ट चेक इट, करेक्ट है तो बताओ, अगर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है तो भी बता दो, सो दैट वी कैन रेक्टिफाई इट, ठीक है। बट ये तो क्लियर हो गया फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। अभी ये रहा, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद, ओके, एट 6, मतलब ये है मेरा प्रिंसिपल 1200000, रेट 6% पर एनम।
सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है, टाइम दिया है 2 years. Had I borrowed this sum for 6% per annum for compound interest, what extra amount I have? वही है रे यार, नहीं मैं नहीं करता, ये आपको करना है खुद से. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सेम अभी जो क्वेश्चन किया था वही है. फाइन. नेक्स्ट वन. वासुदेवन इन्वेस्टेड रुपीज़, मतलब ये है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है 60,000. इन्वेस्ट हो या बोरो हो वही होता है प्रिंसिपल. इंटरेस्ट 12%, तो रेट इज़ 12% पर एनम. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन ये हाफ ईयरली है तो ये ईयरली है, हाफ ईयरली. फॉर हाफ ईयरली हमें क्या होता है देखो, प्रिंसिपल वुड रिमेन सेम, रेट वुड बिकम हाफ, याद रखो इसको, एंड टाइम वुड बिकम डबल. ओके, टाइम, तो टाइम डबल कैसे होता है देखो, आफ्टर 6 months मतलब हाफ ईयर, इसका डबल मतलब क्या होगा, टाइम 1 हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 1 एक हाफ ईयर के लिए, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए. आपको समझ में आ रहा होगा. एंड व्हेन इट कम्स टू 1 year इट विल बी 2 half years, सो 1 into 2 डबल हो जाता है टाइम. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. एंड ऑफकोर्स हाफ ईयर का कैलकुलेशन ज़्यादा लॉजिकल है कि कितने हाफ ईयर्स हैं, तो 6 months में एक ही हाफ ईयर है, तो इसलिए एन इज इक्वल टू 1 आ गया. ठीक है ना, समझ में आ गया. रेट को हाफ करना मत भूलना. तो वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट केस इज इक्वल टू बाय अमाउंट, सॉरी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू एन. तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 ही है, तो ज़्यादा ईजी हो गई है ना. 60,000 1 प्लस 6/100, राइट, रेट इज़ बिन हाफ, 6/100 रेस टू 1 हो गया. तो दिस इज 60,000, सॉरी, दिस वुड बी 2 3 6 2 50 तो 53/50. तो 0 0 गेट कैंसिल, 5 से डिवाइड हो सकता है. इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन गेट द आंसर. ठीक है. आफ्टर 1 year द सेम थिंग, आफ्टर 1 year यू वांट, तो यू कैन नॉट जस्ट राइट इट डबल ऑफ इट, बिल्कुल नहीं. तो आपको डायरेक्टली अमाउंट लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू एन. ऑफकोर्स एवरीथिंग इज हाफ ईयरली, तो 60,000 1 प्लस आर इज 6/100 रेस टू एन. एन दिस टाइम क्या है 1 year. 1 year मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया. ओके, आई होप यू कैन सॉल्व दिस. बाकी सब सेम रहेगा, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट अदर थिंग्स. आफ्टर 1 year आप बोलोगे अभी ये जो अमाउंट है ये तो हमने इसका अमाउंट यूज़ करना है या प्रिंसिपल अमाउंट जो बेसिक अमाउंट यूज़ करना है. ऑफकोर्स द बेसिक अमाउंट यूज़ करना है. हाँ, अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट हाफ ईयर का निकालते हैं हाँ तब हम लोग ये अमाउंट लेके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हम लोग क्या करें, पूरे 1 year का निकाल रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. सो द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन सेम, दैट इज 60,000. रिमेंबर दैट. है, ईजी है, वही फॉर्मूला बार बार वही यूज़ कर रहे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है. चलो, सिंपल है. देखो 80,000 रुपीज़ लोन फ्रॉम द बैंक लिया है आरिफ ने, 10% पर एनम, एंड इतना टाइम है. ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअली वुड बी डिफिकल्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वुड बी ईजी इन दिस केस. तो एनुअली यहाँ पे करते हैं. एनुअली क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज टाइम इज इन अ फ्रैक्शन. तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 80,000, रेट जो है वो है 10%, एंड टाइम जो है वो है 1 प्लस हाफ. ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको पता है. हाफ के लिए अलग करना पड़ेगा, 1 के लिए अलग करना पड़ेगा. तो 1 year के लिए हमें क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100, दैट मीन्स 1 आर बाय 100 रेज टू एन. प्रिंसिपल है 80,000, 1 प्लस 1/10, तो 11/10 रेज टू एन. एन इज़ 1 ऑफ कोर्स, 0 0 गेट कैंसिल, 11 8 ज़ा 88 एंड द 3 zeros. तो दिस इज़ वॉट माई अमाउंट इज़. ठीक है, आफ्टर 1 year एंड द रेट इज़ गिवन देयर. ठीक है ना. लेकिन हाँ, हाफ ईयर के लिए जो होगा वो इसका 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 अमाउंट यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट हम लोग करेंगे कैलकुलेट, PTR/100. द नेक्स्ट इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर यू हैव टू राइट दैट, दिस इज फॉर 1 year एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर. आपको ये पता होगा कि व्हेन यू आर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year एंड सिंपल इंटरेस्ट बोथ आर इक्वल, ये पता है आपको. अगर आपने इसी क्वेश्चन के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया फॉर 1 year देन ऑल्सो यू गेट द सेम थिंग.
सो फॉर 1 ईयर इफ़ यू थिंक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सेम ही रहता है, तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो फॉर 1 ईयर और कंपाउंड एक ही होता है. हाँ ऑफकोर्स इट इज़ अ कंपाउंड, इसलिए मैं हम लोग क्या करते हैं वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बस दैट्स इट. हाँ लेकिन नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा वो चेंज होगा. प्रिंसिपल हो जाएगा 88,000 इंटू टाइम इज हाफ ईयर, तो 1/2 इंटू रेट इज़ 10. ओके कहाँ गया रेट, यस 10. एनुअली कर रहे तो 10 ही होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं तो 10 का कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे. तो वी हैव 880 इंटू 5. व्हाट इज 880 इंटू 5? इट इज़ ऐसा आएगा 4400. तो ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो पूछा क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट, हाँ फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट कितना है वो फाइंड करना है. तो अमाउंट, टोटल अमाउंट हम लोग बोलते हैं, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 88,000 प्लस 4400, ये आएगा आंसर जो भी आएगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं. अभी सेम क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है एज इट इज़. तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज गोइंग टू बिकम ईजी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी डायरेक्टली एन इज एज इंटीजर. ओके, तो ये देखते हैं. तो थोड़ा लेंदी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ईजी है, सेम ही तो है, बार बार वही कर रहे हैं. अतः कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल वुड रिमेन सेम, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80,000. Okay, then the rate is going to be equal to 10% per annum, which will be 5% for half year. ठीक है ना, 5% रेट हो जाएगा. ओके, 5% फॉर हाफ ईयर. रेट हाफ करना है ये तो पता है. एंड टाइम कितना होगा, टाइम विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 विच इज़ 3/2 ईयर. तो एन विल बी इक्वल टू कितना होगा, इसका डबल फॉर हाफ ईयर के लिए. कितने हाफ ईयर है ऐसे भी सोचते हैं हम लोग, इसका डबल तो 3 आएगा, इंटू 3 किया तो 3 आएगा. तो n विल बी इक्वल टू 3 आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड सेकंड थिंग यू कैन से दैट कितने हाफ ईयर इसमें है, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होता है, नेक्स्ट वाला हाफ ईयर तो 3, n इज इक्वल टू 3. अभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, बस रेट विल बी डिफरेंट. कैन यू डू इट? Isn't it? I know calculations are difficult, you might take a lot of time, that's the reason we are going slow. तो जितना हो सके उतना खुद से करो, प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट यू कैलकुलेट ऑल बाय योर सेल्फ. विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल बाय योर सेल्फ यू विल नेवर नेवर एवर get these kind of sums. Okay, so practice the calculations, try to do it. If you are making errors, make sure that कि आप लोग वेरीफाई करते हो आंसर्स और उसको फिर से करते हो, वेरीफाई करके छोड़ नहीं देते, वेरीफाई करते हो, गलत आया तो फिर से करना. ये पेशेंस आपको यू हैव टू कीप दिस पेशेंस. और अभी नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू. सो व्हेन इट कम्स टू 9th स्टैंडर्ड, व्हेन इट कम्स टू 10th स्टैंडर्ड, डायरेक्टली आई विल से दैट ये आपको आना चाहिए, दैट्स इट. मुझे नहीं पता कुछ भी, otherwise leave it, because that time you don't have time, and that time even I do not have time to get all these things covered. तो यही एक टाइम है 8th स्टैंडर्ड में, कवर अप कर लो आपके सारे एरर, सारे लिमिटेशन, सबको कवर अप करो एंड स्टेप अहेड. ओके, तो थैंक यू सो मच. यहाँ पे हम लोग आज का सेशन रोक देते हैं. डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट इट, डोंट कीप दिस थिंग एटलीस्ट पेंडिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगा बाद में. तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो.